A very good morning to all of you. Today we are going to discuss about the judicial activism. In our last class also we have discussed something about, we have discussed some portions of judicial activism, how judicially actively or proactively worked, okay, after after PIL, and how PIL or SAL helped judiciary to proactively work, okay, helps in judicial activism. And we have talked about some cases also, PIL cases also. Now today we are going to discuss about little bit about the judicial activism, okay, some of its positive impacts and some of its negative impacts, and after that we will shift to judiciary and rights, and how judiciary helps to protect our rights, okay. So judicial activism has had manifold impact on the political system. Judicial activism जो है उसके उसका खाली एक ही रोल नहीं है कि लोगों ने पीआईएल डाल दी और हमने उसको जस्टिस दे दिया, लोगों को जस्टिस दे दिया. इट हैज मैनी फोल्ड इम्पैक्ट, बहुत से उसके इम्पैक्ट है, और पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत से उसके जो है इम्पैक्ट्स हैं. Some of are really considered as the positive, and what are these? It has democratized the judicial system by giving not just to individuals but also group access to the courts. It has democratized, it has freely it has liberalized the people, liberalized the groups, liberalized the individuals टू एक्सेस टू द कोर्ट्स, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो डिप्राइव्ड सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, कोई भी मेजॉरिटी, कोई भी अंडर प्रिविलेज सेक्शन हो, उनको क्या है, कोर्ट्स तक जो है एक्सेस मिल सके. पहले क्या कंसिडर्ड किया जाता था, जो जुडिशियल सिस्टम है, कि जो रिच हैं, जिनके पास पैसा है, ठीक है, वो ही थोड़ा अप्रोच कर सकते थे जुडिशियल सिस्टम में. कहीं मेंशन नहीं है ये चीज, बट जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट केसेस में बहुत खर्चा होता है, तो जो ऐसे लोग जिनके पास पैसा होता है या जो अप्रोच कर सकते हैं, वो ही नॉर्मली क्या करते थे, जुडिशरी के पास जाते थे और जस्टिस के लिए डिमांड करते थे. बट आफ्टर पीआईएल एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, lots of unprivileged groups, deprived section, poor section, majority of the section who is not able to fulfill their demands, or they are not their rights were violated. They all have the access to the courts just because of the judicial activism and public interest litigation. This is one of the positive benefit of judicial activism. It has forced executive accountability. Now look at this point, it has forced, अगर कोई भी executive है, he is not taking care of his her responsibility, he is not fully fulfill his responsibility, he is not accountable to his duties, then judicial system can or judicial system has forced him to do his responsibilities, who to fulfill his responsibilities, okay. How? Because अगर कोई भी XYZ executive person है, he is not fulfilling his or her duty, और तो उसको एक, उसके अगेंस्ट में क्या है, पीआईएल फाइल हो सकती है, ठीक है, कि कोई भी अब पीआईएल फाइल कर सकता है. अगर देखते हैं कि कोई भी ये जो एग्जीक्यूटिव पर्सन है, फलाना कलेक्टर है, ही इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू हिज चेयर, देन इसके लिए पीआईएल फाइल की जा सकती है, कोई भी पीआईएल फाइल कर सकता है. तो जुडिशरी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फोर्स कर रही है एग्जीक्यूटिव को कि वो अपना अकाउंटेबिलिटी को क्या करे, मेंटेन करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाए और अपने वर्क को अच्छे से करे. अगर नहीं करेगा तो
क्या है, लोगों के पास अब एक्सेस है कि वो उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, और वो उसको उसका जो वर्क है वहां से वो हट सकता है। बिकॉज अगर वो अपना वर्क नहीं करेगा, लोगों को परेशानी होगी, तो लोग जो है जुडिशरी तक अप्रोच कर सकते हैं। जुडिशरी क्या कर सकता है, उसको फोर्स करेगा, उसको बोलेगा कि तुम अपना काम अच्छे से करो। So this is also a positive impact of judicial activism and PIL. It has also made an attempt to make the electoral system much more free and fair. Now our electoral system, ठीक है, it becomes much more free and fair. It become, as compared to prior electoral system, now it is much फ्री और फेयर इलेक्ट्रल सिस्टम है। ऐसा नहीं है कोई भी पर्सन आ रहा है और उसने क्या है, ही वांट्स टू बिकम अ मिनिस्टर, वो बन गया। नाउ जो जुडिशियरी सिस्टम है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीआईएल्स एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, जो जुडिशरी ने एक अटेम्प्ट किया कि जो भी कैंडिडेट्स, ठीक है, जो इलेक्शंस में जो रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को, जो इलेक्शंस में आएंगे या फिर जो भी है, उनको एफिडेविट्स के लिए बोला गया कि यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू फाइल योर एफिडेविट्स। यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। एफिडेविट की एक कोर्ट का एक लीगल पेपर होता है जिसमें आप लिख के देते हो कि हाँ मैंने बहुत अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एफिडेविट्स होते हैं। तो इसमें ये लिख के देते हो कि हाँ मेरी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मेरी ये फैमिली इनकम है, एनुअल इनकम है, ठीक है, मेरे पास एक्यूरेट नॉलेज है, मेरे पास इतनी असेट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीजें एक जो भी कैंडिडेट होगा वो क्या है, लिख के देता है इलेक्शंस को कंटेस्ट करने से पहले। तो दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म ओनली, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म के वजह से ही जो है अब कैंडिडेट्स को इन इलेक्शंस कंटेस्ट करने से पहले जो है एफिडेविट्स फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है और फेयर हुआ है, और जो बोल सकते हैं कि थोड़ा एजुकेशन जो है यहाँ पे कि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन अगर किसी सीट को, ठीक है, किसी आप बोल सकते हो कि एक चेयर को या फिर किसी पथ, दिस इज द टर्म आई नॉर्मली गेट, तो उसको अच्छे से चला सकता है, ठीक है। सो जो एफिडेविट्स हैं, ठीक है, ये एफिडेविट्स फाइल करने में और ये सारी चीजों में नॉलेज की एक्यूरेसी देखने में कि ही दिस पर्सन इज सुटेबल और नॉट, तो जुडिशियल एक्टिविज्म में इसने बहुत हेल्प की है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हाउ जुडिशियल एक्टिविज्म impacted our political system. So these are the three main points you can write, okay, you should know about it. But there are some negative sides of judicial activism also, or PILs also. So what are these? Negative sides to the large number of PILs and the idea of a proactive judiciary. Now judiciary is working प्रोएक्टिवली, ठीक है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, प्रोएक्टिवली काम कर रही है, बट इतनी बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल्स की वजह से, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिले हैं। स्कॉलर्स कहते हैं इट हैज ओवरबर्डन द कोर्ट्स, ठीक है। हाउ कि अब बहुत सारे पीआईएल्स, ऐसे ही बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शंस हैं आपके, किसके, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शंस है। आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी आ रहा है, रिट भी आ रहा है, एपीलेट भी आ रहा है, एडवाइजरी भी आ रहा है, इतने सारे ज्यूरिसडिक्शंस हैं। तो अब क्या हमें पीआईएल्स भी अब आने लग गए। तो अब इतने लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल्स के वजह से जो है जो जुडिशरी है ओवरबर्डन हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे केसेस जो है जुडिशरी के सामने देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ जो पीआईएल्स हैं वो मतलब
काम की भी नहीं होती है, बट फिर भी जुडिशरी को उसे एंटरटेन करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है, और वो जो पीआईएल फाइल करता है उन्हें समझाना भी पड़ता है इफ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली और इफ इट इज नॉट एबल टू हैपन। तो बहुत से ऐसे पीआईएल्स हैं जिनको जुडिशरी को देखना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि इट इज नॉट सुटेबल टू डू इट, ओके, और अभी पॉसिबल नहीं है। तो in one term we can called we called it has overburdened the courts। in one sentence हम ये बोल सकते हैं कि जुडिशरी ने और लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल्स ने क्या किया है, और जुडिशरी की प्रोएक्टिव वर्क के कारण जो है जुडिशरी को ओवरबर्डन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट्स को। Judicial activism has blurred the line of distinction between the executive and legislature on the one hand and the judiciary on the other. Now, just look at this statement. Judicial activism has blurred the line of distinction. You all know judiciary, executive, and legislative are the three main organs of the government. But as compared to judiciary, both executive and legislature become blurred। ठीक है, उनका जो वर्क है इतना प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, क्योंकि जुडिशरी जो है हर एक मामले में क्या कर रहा है, इतना प्रोएक्टिवली जजमेंट दे रहा है, हर एक मामले में वो सामने आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। ठीक है, मैंने बोल दिया कि आप बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो, आप आ सकते हो, और बट उस फोटोग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, खाली मैं ही सामने हूँ, आपको मैंने पीछे दबा दिया है, ठीक है, ब्लर कर दिया है, तो व्हाट इट मींस। ठीक है, तो क्या आप उस फोटो में दिख भी रहे हो क्लियरली? तो जस्ट लाइक दैट क्या है, जुडिशरी ने क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को ब्लर कर दिया है, उनके वर्किंग को ब्लर कर दिया है। नाउ हाउ the court has been involved in resolving questions which belong to the executive. There are some of the problems which belong to the executive, कि executive accountable है उनको solve करने के लिए, या legislative accountable है उन्हें solve करने के लिए, but judiciary is playing that role of executive। like एक एग्जाम्पल गिवन है, रिड्यूसिंग एयर और साउंड पोल्यूशन। अब इसके लिए भी जुडिशरी जजमेंट दे रही है, कि करप्शन के केसेस हैं उसके लिए भी जुडिशरी ऑर्डर्स दे रही है, जुडिशरी क्या कर रही है, जजमेंट्स दे रही है। या इलेक्टोरल रिफॉर्म कैसा होना चाहिए और क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, ये एटसेट्रा, दीज आर नॉट द एग्जैक्ट ड्यूटी ऑफ जुडिशरी, दीज आर द ड्यूटीज ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की ड्यूटी है कि दे मेक द लॉज, दे मेक द proper laws, and executive will help them to implement that laws for the for reducing the air pollution and sound pollution, or for reducing the corruption level, for रिमूविंग द करप्शन लेवल। बट क्या है, पीआईएल्स इतनी फाइल हो रही है कि सारी जो जजमेंट्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन दे रहा है, जुडिशियरी ही दे रहा है। ओके क्लास, सो समहाउ द, जैसे कि रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, तो अब इनके लिए जो लॉज बनेंगे कि हम एयर पोल्यूशन कैसे बना सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर क्या लॉज होने चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो अगर हम एग्जैक्ट ड्यूटीज देखें तो ये किसकी ड्यूटीज हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की ही ड्यूटी है। बट पीआईएल्स इनके लिए आता है कि हमारे एग्जाम्पल ले लो, हमारे घर के पास में एक इतना बड़ा सा भवन बन चुका है, अब वहां पे रात को 4-4 बजे तक गाने चलते हैं, तो इट्स क्रिएटिंग द साउंड पोल्यूशन एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो क्या है, डायरेक्टली पीआईएल ही फाइल हो जाती है। पीपल आर नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वो चीज देख नहीं रहे हैं कि ओके हाँ इससे साउंड पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो वी हैव टू डू समथिंग फॉर इट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पीआईएल फाइल कर रहे हैं, और इसके लिए जजमेंट कौन दे रहा है, जजमेंट दे रहा है जुडिशियरी सिस्टम, जजमेंट दे रहा है कि ठीक है रात को 11 बजे के बाद में क्या है, अब गाने नहीं बजेंगे, कोई भी आप सबने सुना ही होगा ये वाला, तो कि म्यूजिक नहीं चलेगा। तो बेसिकली ये वर्क किसका है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का है। तो इस वजह से क्या है, समहाउ जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो ब्लर कर रहा है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है,
Now, judicial activism has made the balance, sorry, so has made the balance among the three organs of the government very delicate. अब आप देखते हो तो जुडिशरी जो है क्या कर रहा है अब, फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्री ऑर्गन्स हैं हमारे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियली एक्टिविज्म इतना डेलिकेट हो गया ना, एक पतला सा एक तार नहीं होता, ठीक है, उसके जितना हम इतना पतला उनका रिलेशन हो गया है कि थोड़ी सी भी इधर उधर हुई कि हमारा जो रिश्ता, एक बोलते हैं ना, एक रिश्ता जो होता है, एक रिलेशनशिप होता है, एक डोर की तरह ही होता है, अगर उसको बहुत डेलिकेट होता है, ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट इन तीनों ऑर्गन के बीच में भी जुडिशियल एक्टिविज्म के वजह से इतनी डेलिकेसी आ चुकी है कि अगर कुछ भी थोड़ा भी रॉन्ग स्टेप होता है तो जुडिशरी कैन टेक एक्शन, और ठीक है, इट्स गुड कि जुडिशरी एक्शंस ले, बट जो एग्जैक्ट जो आपके वर्क मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का, वो वर्क उन्हीं को ही करने दें। तो यहाँ पे क्या है, तीनों ऑर्गन्स के जो हैं बहुत एक डेलिकेसी आ चुकी है, बहुत डेलिकेट बन चुके हैं कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो हम बोल सकते हैं कि सारा मामला हो गया इधर से उधर। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, democratic government is based on each organ of government respecting the powers and jurisdictions of the others. So judicial activism may be creating strains on this democratic principles, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके, उनके वर्क को लेके क्या कर रही है, स्ट्रेन्स पैदा कहीं ना कहीं स्ट्रेन्स पैदा कर रही है, एंड ऑल दीज आर लाइक मेंशन्ड बाय द स्कॉलर्स, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्कॉलर्स कहते हैं, बहुत डिबेट्स भी चलती है इसके बीच में। तो ऐसा क्यों बोला, अब जैसे 1970s का टाइम था जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपना काम नहीं कर रही थी सही से, तब जुडिशरी ने प्रोएक्टिवली वो सामने आई और सारा मोर्चा संभाला और सब कुछ अच्छे से किया, दैट्स गुड। बट जैसे जैसे सिचुएशंस हैंडल होती गई तो क्या है, अब इंडिया में जो ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पोर्शन है आपके, उनको अपना काम क्या है अच्छे से करना चाहिए, एंड जुडिशरी को आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए कि देव आप अपना वर्क जो है अच्छे से करें। ओके, सो दिस इज some of the negative impacts of the judicial activism. Okay, now we shifted to our the next topic, that is judiciary and rights. Okay, now judiciary and how judiciary helps to protect our rights in the chapter fundamental rights, ठीक है, rights of the rights जो mention है, आपने chapter second में पढ़ा भी होगा, आपने आपकी जो given rights हैं, क्या राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हाउ जुडिशरी का रिलेशन क्या है राइट्स, एंड हाउ इट हेल्प्स, how it protect the rights of the individuals. So the judiciary is entrusted with the task of protecting rights of individuals. The main work, the main responsibility of judiciary is to entrust the, is to protect the rights of the individuals. Okay, and for this there are two provisions given in our constitution, and what are these? First it can restore fundamental rights by issuing writs of habeas corpus, mandamus, ठीक है, कोवेरेंटो एक्सेट्रा दी। तो जो पहला जो है, जो आपके आर्टिकल 32 में मेंशन है, पहले भी डिस्कस किया था हमने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो जुडिशरी है फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर कर सकता है। कैसे रीस्टोर कर सकता है? बाय इशूइंग रिट्स। ओके, इट इज मेंशन फॉर सुप्रीम कोर्ट रिट्स, इट इज मेंशन इन आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट्स के पास भी ये पावर है रिट्स इशू करने की, और वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? इट इज मेंशनड इन आर्टिकल 226। बेटा अभी मैं बोलूंगी, आप आर्टिकल्स में ज्यादा मत घुसना, मत ज्यादा आर्टिकल्स में ऐसे कंफ्यूज मत होना। अभी जो है आप जो एसेंस समझो कि बात कहने का मतलब क्या है और इसका मेन बेसिक रोल क्या है। इन योर फर्दर क्लासेस आप इन आर्टिकल्स के बारे में और डीपली पढ़ोगे। सो राइट फॉर नाउ अभी जो है बेसिक बात जो है इसका, जो आप बोलते हो ना, एक
नींव जो है, दिस इज योर नींव, ठीक है, मेन एक रूट है ये, तो इस रूट को समझो। तो पहला फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कर सकती है बाय इशूइंग रेट्स, कि हमारे पास एक राइट है कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वी कैन रिस्टोर आवर फंडामेंटल राइट विद द हेल्प ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. Now secondly, second provision is the Supreme Court can declare the concerned law as unconstitutional and therefore non-operational. सुप्रीम कोर्ट कोई भी जो लॉ है, ठीक है, कंसर्न लॉ है, कोई भी लॉ आया सामने, ठीक है, लेजिस्लेटिव ने बना दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन ऑपरेशनल बोल सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 आफ्टर रिव्यूइंग. ऐसा नहीं है कि उसका सुप्रीम कोर्ट का मन किया और उसने बोल दिया कि मुझे ये लॉ अच्छा नहीं लगा और मैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा हूँ. नो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करेगा और उसके बाद क्या कर सकता है, वो डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी लॉ को, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे राइट टू प्रॉपर्टी का भी आया था, तो बहुत सारे लोगों को था कि ये तो राइट टू प्रॉपर्टी के लिए हमारा ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए, आपने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दी, तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा राइट वायलेट हो रहा है. तो फिर इसके लिए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से वो देखे थे कि ठीक है, हाँ, अब लोगों को अब डेवलपमेंट के नाम पे लोगों से इनकी जमीनें छीनी जा रही, उनकी राइट टू प्रॉपर्टी, उनका जो राइट है वो वायलेट हो रहा है. तो इसके लिए कोई भी लॉ को किसी भी लॉ को जो लेजिस्लेटिव बनाती है, ठीक है, उस लॉ को वो देखती है कि जो मेन रोल है, मेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है जुडिशरी का रोल, वो है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. अगर किसी भी मायने में फंडामेंटल राइट वायलेट होता है किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का, तो उसके राइट को रिस्टोर करना ये सुप्रीम कोर्ट की प्राइमरी ड्यूटी होती है. और अगर किसी भी चीज से, किसी भी एक स्टेप से या किसी लॉ से कोई राइट वायलेट होता है किसी पर्सन का, देन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. एक एग्जांपल ये भी था, एक आपको मैंने जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बताया था, तो उसमें मैंने बताया था एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें एक लॉ बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, ये एक लेके आया था कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होनी चाहिए जजेस को अपॉइंट करने के लिए. बट सुप्रीम कोर्ट ने वो उस लॉ को क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, और उसके बाद वो जो लॉ है वो नॉन ऑपरेशनल हो गया, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल इट इज द सुप्रीम कोर्ट कैन डू दिस, अकॉर्डिंग टू द इट इज गिवन in article 13. So these are the two provisions through which judiciary can protect the rights of the individuals. Now Supreme Court is also is known as the protector of fundamental rights and also the interpreter of constitution. Now how protector of fundamental rights, you all I think समझ आ गया आपको कि क्या है प्रोटेक्टर, की फंडामेंटल हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट है. पर इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इंटरप्रेटर कैसे करता है, कि ऐसे ही मैंने जो आपको ये सेकंड बात बताई कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है, नॉन ऑपरेशनल बोल सकता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुए उनको कुछ हद से चेंज कर सकता है, लॉज कहीं ना कहीं लॉ बना सकता है, या ये अभी जो बात आएगी लॉ बना सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे जो बात हम पढ़ेंगे उसमें, कि इंटरप्रेटर कैसे बनता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कैसे करता है, बाय द जुडिशियल रिव्यू. नाउ व्हाट इज दिस टर्म जुडिशियल रिव्यू? Judicial review, it means the power of the Supreme Court or High Court to examine the constitutionality of any law. If the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provisions of the Constitution, such a law is declared as unconstitutional and inapplicable. और Supreme Court और हाई कोर्ट कैसे जुडिशियल रिव्यू करते हैं, इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, विद द
with the power of the judicial review. जुडिशियल रिव्यू में होता है कि वो एग्जामिन करते हैं कि क्या जो भी लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है, उसके उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, ओरिजिनल लॉ को रिव्यू करने की उनके पास पावर होती है। और अगर उसको पढ़ने के बाद उनको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट हो रहे हैं या फिर ये लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यू कैन से जुडिशरी जो है उस लॉ को इनकंसिस्टेंट बोल सकती है और उसके बाद बोल सकती है कि दिस लॉ इज इम्पेकेबल। बट एक क्वेश्चन, और ये जो जुडिशियल रिव्यू का टर्म है, ये टर्म जो है कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है, बट जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनमें कहीं ना कुछ ऐसा लिखा गया है, ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जिसको क्या है आप रिव्यू करना ही बोलोगे, ठीक है, चेक एग्जामिन करना ही बोलोगे। Okay, so this is judicial review. Now next portion we can discuss in our next class, okay, about the judicial review and the rights of the judiciary and how it can protect the rights and how it protect our fundamental rights and federal matters, etc, etc. Okay, so please do read the chapter, and if you find any problem you can ask me in my next class. So till then, take care of yourself. Please enjoy your holidays. Take care. Bye.